with this, I also give you the permission. Thank you. Thank you so much, ma'am. For good ideas and true innovation, you need human interaction, conflict, argument, and debate. Now, I would like to call Mr. Vikas Kumar, who is doing B.Ed second year from Mahipat College of Education from Maharshi Dayanand University, Haryana, and he has done his graduation and masters in economics from DU and IGNOU. So, Mr. Vikas, stage is all yours. Go ahead and all the best to you. Thank you, Siva, and thank you, Manish sir, Manisha ma'am, and everyone. Welcome, Vikas. Whole History Society of Samral College Evening and Delhi University for giving me this opportunity. Uh, First of all, my introduction. My name is Vikas Kumar. I done my BA Honors Economics from Zakir Hussain Delhi College Morning. Then MA in Economics from Swami Sardhanand College Learning Center, IGNOU. Currently, I am pursuing B.Ed, Bachelor of Education from the Lieutenant Mahipat College of Education, Maharishi Dayanand University, Rohtak, second year. So, as this is my academic. In the debating, I am international level debater as well as international level adjudicator of debating. As with this, I am international level career counseling coach, career guidance coach. So we can start on this topic. And this is the art of debating. What is debating and the art? कला क्या है और ये आर्ट हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे हम इसको समझते हैं और डीयू डिबेटिंग सर्किट कैसे काम करता है, ये हम सीखने की जानने की इसमें कोशिश करेंगे. So now the art of debating and the DU debating circuit. So what is debate? तो जब डिबेट के बारे में हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि डिबेट होगा तो कुछ झगड़ा हो रहा होगा, डिबेट कर रहा है कोई, दो लोग यदि डिबेट कर रहे हैं, इफ टू पर्सन इज डिबेटिंग, सो दे आर आर्गुइंग, सो आर्गुइंग, और वो इररिलेवेंट आर्ग्यू कर रहे हैं. तो हमें डिबेट से ये समझ में आता है, क्योंकि यदि कंस्ट्रक्टिव डिबेट है तो मुझे कहते हैं डिस्कशन हो रहा है, और डिस्कशन को हम पॉजिटिव वे में लेते हैं, डिबेट को हम आमतौर पे नेगेटिव वे में लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं. दिस इज नॉट द केस. सो डिबेट इज अ डिस्कशन और स्ट्रक्चर्ड कंटेस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज स्ट्रक्चर्ड, कि दिस इज द स्ट्रक्चर, पहले ये होगा, देन ये होगा, देन ये होगा. दिस इज स्ट्रक्चर्ड कॉन्टेस्ट इज डिबेट about an issue or a resolution or a motion. What is resolution or a motion? The topic on which we are debating is called resolution or a motion, or issue on which the two person or the two teams is debating is called, in a structured context, is called debate. Now in a formal debate, as we know, a formal debate involves two sides, one supporting a resolution, means ki one is supporting a resolution, one is for the motion, one is arguing that this is the correct, and one is opposing it. So this could be in the team, individual debate, and different thing. But this debate is bound by a set of rules जो कि प्रीवियसली एग्रीड हो चुके हैं, जो प्रीवियसली बताए जा चुके कि आपको इस सेट दायरे में रह करके डिबेट करनी है. ये डिबेट, जैसे डिबेट के लिए एक सिंपल सी लाइन कही जाती है कि यदि आपको कौन सी बात कब, कहां और कैसे कहनी है, ये सलीका आता है तो हर बात सुनी जाती है. कब कौन सी बात कहां कैसे कहनी है, ये सलीका आता हो तो हर बात सुनी जाती है, और ये डिबेट सिखाता है. अदरवाइज हम देखते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनको बहुत अच्छे से बोलना आता है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सी नॉलेज है, बट फिर भी वहां पर डिबेट से आपको कंस्ट्रक्शन निकल के नहीं आ रहा है. इसकी वजह क्योंकि आप वहां पर डिबेट एक फॉर्मल तरीके से नहीं कर रहे हैं, आप वहां पर बेहतर तरीके से, स्ट्रक्चर तरीके से आप उस डिबेट को नहीं कर रहे हैं. सो नाउ द ट्रेडिशंस ऑफ डिबेट इन इंडिया. सो ट्रेडिशन इन डिबेट इन इंडिया में हम देखते हैं कि डिबेट, डिस्कशन, डिसेंट आर द इंडियन सिविलाइजेशन. ये हमेशा से इंडियन सिविलाइजेशन में रहा है. ऐसा नहीं है कि ये कॉन्टेक्स्ट कोई आज आया है या ये कॉन्टेक्स्ट कोई वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट है. वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट ना होकर के इंडियन कॉन्टेक्स्ट है. कैसे? एंशिएंट इंडिया में हमने देखा था कि मैत्री और यज्ञवल्क्य की डिबेट के बारे में हम सुनते हैं. मिडिवल इंडिया में हम अकबर के इबादत खाना की डिबेट के बारे में सुनते हैं. मॉडर्न इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेट्स हैं, डिफरेंट इश्यूज पे डिबेट्स हैं. हम एक एक करके सभी चीजों को डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें इसमें से, वो हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. जैसे यदि हम एंशिएंट इंडिया से देखें तो मैत्री और यज्ञवल्क्य का डिबेट है.
जिसमें हम देखते हैं कि मैत्री जो थी एक इंडियन फिलोसफर थी 8th सेंचुरी बीसीई के आसपास, और बृहदारण्यक जो उपनिषद है उनके बारे में लिखा हुआ है। तो ऋषि जो सेज ऋषि हैं, जो सेज है हमारे मित्र ऋषि की पुत्री थी, जो मैत्री है ये। तो मैत्री की शादी होती है यज्ञवल्क्य से, लेकिन यज्ञवल्क्य उनकी 2 वाइफ है। यज्ञवल्क्य खुद एक बहुत ऋषि है जो बहुत ही ज्ञानवान है। यज्ञवल्क्य की 2 पत्नी हैं, उसमें से जो दूसरी पत्नी है वो मैत्री हैं। तो फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ के बाद, जैसा कि हमारे एंशिएंट इंडिया में होता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ के बाद उनके मन में सन्यास की इच्छा आती है, और वो सन्यास के बारे में डिस्कस करते हैं, मैत्री को बताते हैं कि मैत्री मैं सन्यास लेना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बिकम सन्यासी फ्रॉम नाउ। और वो उसको इच्छा बताने के बाद कहते हैं कि जितनी भी हमारी धन संपदा है वो तुम और जो उनकी बड़ी वाइफ थी, जो पहले वाइफ थी उनकी कात्यानी, इन दोनों के बीच में इसका बंटवारा हो जाए। तो वो उनको बताते हैं कि इनका बंटवारा कैसे हो जाए और कैसे करना है, ये आप दोनों डिसाइड कर लो। तो मैत्री उनसे कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, आई डोंट वांट वेल्थ। व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट क्रिएट मी इमोर्टल, ये मुझे अमरत्व नहीं देगा, बट मैं चाहती हूँ अमरत्व। मैं उस अमरत्व के उस ज्ञान को चाहती हूँ जो मुझे जीवन में हमेशा साथ में रहे। मैं इस वेल्थ का क्या करूंगी? तो इस डायलॉग में पूरे में से ये निकल के आता है कि इस नेचर जो आत्मा में स्वयं का, जो यहाँ पे था स्वयं, और परमात्मा, उन दोनों की यूनिटी और उनका जो कोर है वो दिखाते हैं, और वहां से हम अद्वैत फिलॉसफी लेते हैं। यदि हम इसकी बात करें तो वो कहते हैं, यज्ञवल्क्य कहते हैं कि यदि इससे धन प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन धन प्राप्ति अमृत पाने का तनिक भी आशा नहीं है। इससे तुम्हें जीवन के सारे सुख मिल जाएंगे, लेकिन इससे तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा, उससे तुम्हें अमृतत्व नहीं मिलेगा। तो मैत्री उनसे पूछते, मैं तो अमृतत्व की भूखी हूं। तो वो जो आध्यात्मिक उपदेश उन्हें देते हैं यज्ञवल्क्य, तो यज्ञवल्क्य उन्हें बताते हैं कि पति के लिए अ हस्बैंड इज नॉट लव्ड फॉर हस्बैंड। एक पति के लिए जो प्यार है वो पति के लिए प्यार नहीं है, बल्कि आत्मा के लिए प्यार है, अपनी आत्मा के लिए, खुद के लिए वो प्यार है। एक पुत्र के लिए एक प्यार, वो पुत्र के लिए प्यार ना होकर के आत्मा के लिए प्यार है। जब मैं यहाँ पे कहता हूं आत्मा, तो यहाँ का मतलब है सेल्फ। वो सेल्फ के लिए प्यार है। किसी वस्तु को यदि आपको कोई भी संसार की कोई भी चीज यदि आपको प्रिय है, इफ एनीथिंग इज लव्ड फॉर यू, दिस डज नॉट मीन कि you are loving that goods or that creation of the god, because you are loving yourself। आपको वो चीज पसंद आ रही है, आप अपने लिए उस चीज को प्यार कर रहे हैं, आप अपने लिए उस चीज में प्रेम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पत्नी अपने पति को इसलिए खुश देखना चाह रही है, इसलिए उसके साथ रहना चाह रही है क्योंकि उसे उससे उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही है, या उससे उसकी सारी जरूरतें पूरी हो रही है। तो ये यज्ञवल्क्य बताते हैं उसमें, और कहते हैं कि इसलिए जो आत्मा है, यानी कि जो सेल्फ है, उसकी जो खुशी है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सबसे बेटर है। और आपको सेल्फ के लिए सोचना चाहिए, आपको मनन करना चाहिए, आपको अपने आत्मा के लिए मनन करना चाहिए। और ये आत्मा क्योंकि संसार के सभी जीवों के अंदर है, तो यही आत्मा के ऊपर आप मनन करके, चिंतन करके, दर्शन करके, यही विज्ञान आता है, और विज्ञान से आप अपने जीवन को और पूरी सृष्टि के लिए आप बेटर कर सकते हैं। जहां पे वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ को इकट्ठा करना आपके अंदर नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके लिए ज्ञान जो है वो सर्वोपरि है। ये हमने देखा कि ये जो था ये एंशिएंट इंडिया का डिबेट है। इसके बाद यदि हम मिडिवल इंडिया में चलते हैं, जो हमारा मिडिवल इंडिया का टाइम पीरियड है, उसमें हम जानते हैं कि अकबर, जब मुगल आते हैं, तो मुगल के बाद बाबर और हुमायूं के बाद जब अकबर आते हैं, तो अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसीज है, उस रिलीजियस पॉलिसीज में 1562 के बाद जब अपनी रिलीजियस पॉलिसी शुरू करता है, तो सबके साथ बहुत प्रेम से रहता है। जो फर्स्ट पेज है उनका, तो फर्स्ट पेज के एंड टाइम पे जाकर के 1575 के आसपास उनके मन में विचार आता है, अकबर के मन में, कि कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है और कौन से धर्म का क्या कहना है। मेनली कि क्या कहना है, उसकी जड़ तक पहुंचना, उसके सोर्स तक पहुंचना, उसके ओरिजिन तक पहुंचना, कि रिलीजन का मूल क्या है। वहां तक पहुंचने के लिए वो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं 1575 में। और वहां पे वो डिफरेंट रीजन से अपने लीडर्स को, रिलीजियस लीडर्स जो थे, जो रिलीजियस को अपनी बातों को रख सकते थे या उनको समझते थे, उनको वहां पे बुलाते हैं कि आप आइए और यहाँ पर आकर के डिबेट कीजिए। वो सिख से भी बुलाते हैं, क्रिश्चियन से भी बुला रहे हैं, जोरोस्ट्रियन, हिंदू, इस्लामिक,
सभी लोगों को उन्होंने बुलाया। तो जो वहां पर मुझे जो कॉन्टेक्स्ट याद आ रहा है कि जो इस्लाम उसमें क्रिश्चियन, क्योंकि पुर्तगाली उस समय आए ही थे, तो उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझा कि हम जा रहे हैं और हम जा करके अकबर को, जो कि खुद एक इस्लामिस्ट है, उसको हम अपनी बातों से कन्विंस करेंगे, क्योंकि यदि हम उसे कन्विंस कर लेंगे तो अकबर अपना रिलीजन चेंज करके क्रिश्चियन बन जाएगा। और यदि इफ द अकबर रूलर ऑफ इंडिया विल बिकम द रूलर ऑफ विल बिकम क्रिश्चियन, देन द होल इंडियन पॉपुलेशन विल बिलीव इन द क्रिश्चियनिटी। तो ये वो कहते हैं, इसलिए वो जाते हैं। बार बार सभी लोग वहां पे डिबेट करते हैं, जितने भी स्कॉलर्स वहां पे आते हैं। उस स्कॉलर्स की डिबेट के बाद कई बार उनमें झगड़ा होता है आपस में। वो झगड़ा के बाद भी एक वहां से जो चीज निकल के आती है, कंक्लूजन निकल के आता है कि ऑल रिलीजन का लीड द सेम गोल है, और सेम गोल ये है कि परमात्मा से मिलना है, विश्व शांति रखनी है, और सभी एक दूसरे से मिल करके इस सृष्टि पे रहे। जब सभी का रिलीजन सभी का जो गोल है वो सेम है, तो अकबर का ये कहना है कि फिर ये कैसे है। और फिर जब सभी धर्म के लोग ही आपस में लड़ाई कर रहे हैं, जो भी लोग गए हैं, अलग अलग धर्म के जो प्रचारक हैं, जो उनसे रखने वाले, अपनी बातों को रखने वाले लोग हैं, वो गए हैं, तो 1579 में अकबर उसको बंद करके महजर की उपाधि धारण कर लेते हैं। महजर एक उपाधि थी कि अब ये प्रोक्लेमेशन जो है धर्म का, वो मैं करूंगा कि किसमें क्या लिखा है, इस्लामिस्ट में खास तौर पे। 1582 में क्योंकि कुछ यहां से कंक्लूजन कुछ नया नहीं निकल के आ रहा था, तो उन्होंने इबादत खाना को क्लोज कर दिया अकबर ने, और वहां पे इन्होंने एक दीन या इलाही रिलीजन की शुरुआत करी कि आपको अपना सारा जो वर्ल्डली अफेयर है उसके उसके मुंह में आपको नहीं फंसना है, उसमें आपको बिना फंसे हुए आपको दीन इलाही रिलीजन अपनाना है, और आपको उस वर्ल्डली अफेयर को छोड़ना है। ये थी हमारी इबादत खाना की डिबेट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट यदि हम देखें, तो चाहे कास्ट पे डिबेट हुई, यूनियन पे, वुमेन पे होती है, इंडिया के नाम पे डिबेट होती है कि इंडिया का नाम इंडिया होगा या भारत होगा, रिलीजन के ऊपर डिबेट होता है कि इंडिया का रिलीजन हिंदू राष्ट्र बनाना है नहीं बनाना है, बाकी बहुत सारी लैंग्वेज के ऊपर डिबेट होती है। यहाँ पर एक डिबेट हुई जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर डिबेट है कि इंडिया के लिए क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो सिविल और जो दूसरा लॉ है हमारा क्रिमिनल लॉ, उसमें सिविल लॉ के ऊपर क्या सभी रिलीजियस के ऊपर, फॉर एवरी रिलीजन देयर विल बी इक्वल यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल और नॉट। तो इंडिपेंडेंस के बाद, बिकॉज जो इस्लामिस्ट पार्ट है, इस्लामिस्ट बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अब भी माइनॉरिटीज कम्युनिटी रह रही थी। उस माइनॉरिटीज कम्युनिटीज का भी ध्यान रखना था, लेकिन उनकी भी आवाजें थी कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू किया जा सकता। वाई? क्योंकि हमारे जो खुद के शरीयत लॉज हैं और बाकी सारे लॉ हैं, वो हमें कुछ और बता रहे हैं। तो उस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए डिबेट्स होती हैं, रिलेवेंस था उसका, और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जब डिबेट होती है, तो मोहम्मद इस्माइल है जो मद्रास से हैं, वो कहते हैं कि पर्सनल लॉ एक फंडामेंटल राइट है, और उस पर्सनल लॉ को यदि आप हटा देंगे, ये आपके लाइफ का पार्ट है, जो वे ऑफ लाइफ है आर्टिकल 21 का, उसका पार्ट है पर्सनल लॉ। किसको कैसे जीना है, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, ये आर्टिकल 21 का पार्ट है। तो पर्सनल लॉ, मुझे कैसे जीना है, ये हमारा खुद का राइट है। तो जब खुद का राइट है, तो कैसे आप इसको यूनिफॉर्म कर सकते हैं? तो मोहम्मद इस्माइल जो है इस बात से अपने विचार को रखते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अयंगर जो है वो भी उनको सपोर्ट करते हैं कि होली कुरान, अयंगर बताते हैं कि मैट्रिमोनियल कॉन्टैक्ट जो है वो एंजॉयड बाय द होली कुरान एंड ट्रेडिशन ऑफ द प्रॉफिट के ट्रेडिशन से वो हो रहा है। बट इंडियन कॉन्सेप्ट जो सेकुलरिज्म का है, वो टॉलरेट करता है एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स का विद इक्वल ऑनर एंड डिग्निटी के साथ। तो हिंदू अपने हिंदू के हिसाब से करेगा, मुस्लिम अपने मुस्लिम के हिसाब से शादी करेगा, अपने प्रॉफिट के हिसाब से या अपने शरीयत लॉज के हिसाब से। तो आप दोनों को करने दीजिए अपनी मर्जी से, तो आपको सिंगल लॉ पे, यूनिफॉर्म लॉ पे आने की क्या जरूरत है? लेकिन हिंदू जो कम्युनिटी है, उनका उस वक्त कहना है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम सभी चीजों को लेके आ रहे हैं, सभी लॉज से जो बेटर चीजें हैं उनको लेके आ रहे हैं पर्सनल लॉज से, तो आप यूनिफॉर्म सिविल लॉज अप्लाई कीजिए पूरे इंडिया पे। जिसमें के एम मुंशी अपनी बात को रखते हुए कहते हैं कि पार्लियामेंट के लिए बिल्कुल लॉफुल है। वाई? क्योंकि आर्टिकल गारंटी करता है रिलीजियस फ्रीडम को, तो हम तो रिलीजियस फ्रीडम उस वक्त भी दे रहे हैं, तो जो आपका इसेंशियल प्रैक्टिस है रिलीजन का, उसको तो आप फॉलो कर लीजिए। वो तो आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग आप वैसे भी फॉलो कर सकते हैं, इसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ द रिलीजन। फिर यूरोपियन कंट्रीज दे हैड यूनिफॉर्म लॉज अप्लाइड इवन टू माइनॉरिटीज। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो
हम यूरोपियन कंट्रीज या वेस्टर्न कंट्रीज का कॉन्सेप्ट देखते हैं, वहां क्या है कि स्टेट अलग है और रिलीजन अलग है। स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करता है, बट जो स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबके ऊपर इक्वली अप्लाई होगा, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, मेल हो या फीमेल हो। देन एके अय्यर है उस वक्त, और वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में के एम मुंशी को सपोर्ट करते हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कहना है कि देखिए ऐसा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में मेल और फीमेल के बीच में डिवीजन नहीं करता है, बट आपका पर्सनल लॉज करता है। लेकिन फिर भी पर्सनल लॉज को हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं कर सकते पर्सनल लॉज को हटा करके, क्योंकि वो उस रिचुअल से, उस तरीके से वो बंधे हुए, उस तरीके से वो चले हुए आ रहे हैं। तो इट डिफेंडेड द लॉज ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज। इस वे में वो हिंदू मेंबर्स को और मुस्लिम मेंबर्स को दोनों को ही वो मानते हैं और वो दोनों को ही समझा पाने में कामयाब होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ये भी कहते हैं कि जो आर्टिकल 44 है, जो कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगा इंडिया, बिकॉज दिस इज नॉट जस्टिसेबल, ये डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो कहते हैं कि इट विल बी एप्लीकेबल टू दस हु कंसेंट टू बी गवर्न बाय इट। ये सिर्फ उन्हीं पे लागू होगा जो कि कहेंगे कि हाँ हम इससे लागू होना चाहते हैं या ये हमारे पर लागू हो। आफ्टर ऑल इस डिबेट के बाद कंक्लूजन क्या निकला? सिर्फ डिबेट इस काफी नहीं है, डिबेट का कंक्लूजन निकलना चाहिए। डिबेट का कंक्लूजन निकलने के बाद आप देखते हैं कि हिंदू कोड बिल उसके बाद में बनता है और मुस्लिम लॉज जो है वो भी वैसा चला हुआ आ रहा है। लेकिन जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल का जो लिस्ट 3 है, जो कंकरेंट लिस्ट की बात करते हैं, उसमें पर्सनल लॉज को एंट्री 5 में जगह भी दी गई है। तो यानी कि उस डिबेट का एक कंक्लूजन निकल के आया कि जहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन की बातें लागू हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन लागू करेगा, लेकिन जो यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस है, जो कि आपके धर्म के इसेंशियल प्रैक्टिसेस है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये हम यहां से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है इंडिया में, पहले से जो रिलीजियस इंडिया का इसेंशियल टाइम पीरियड है वहां से चला हुआ आ रहा है, और डिबेट इंडियन सोसाइटीज का एक इसेंशियल पार्ट है। और आज की डेट में भी डिस्कशन, डायलॉग, डिबेट, डिसेंट और डेमोक्रेसी, ये इंडियन डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं। क्योंकि यदि डिस्कशन नहीं होगा, डिसेंट नहीं होगा, डिबेट नहीं होगी, तो आप उस डेमोक्रेसी का, आपका डेमोक्रेसी सक्सेस नहीं होगा। नाउ ये थी हमारी वो चीजें। अब यदि हम बात करें डिबेट पे आ जाते हैं कि आजकल की डिबेट कैसी है, तो फॉर्मेट्स ऑफ डिबेटिंग में मेनली 5 फॉर्मेट ऑफ डिबेटिंग है अभी, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे या जनरली अभी प्रचलित है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है ग्रुप डिस्कशन। नाउ व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन? एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक पे आपके ग्रुप में 25 लोग, 30 लोग या 40 लोग, जो भी लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या एक जनरल डिस्कशन, सोसाइटी का हम सब लोग पार्ट है, सोसाइटी में एक टॉपिक पे हम सब लोग मिलकर के डिस्कस करते हैं। हमारी सोसाइटी में ग्रुप डिस्कशन एक रग-रग में बसी हुई चीज है। देखिए कैसे, आप यदि चाय की दुकान पे बैठे हैं, चाय की दुकान पे आप जानते हैं कि अखबार आता है, वहां पे 6 लोग बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, और एक न्यूज आई, उस न्यूज को पढ़ करके वो 6 के 6 लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ये ग्रुप डिस्कशन है। कोई इसका, किसी का डिसेंट व्यू हो सकता है, किसी का डिफरेंट व्यू हो सकता है, बट उस ग्रुप डिस्कशन से जो चीजें निकल के आती है कि सबकी नॉलेज से एक कॉमन व्यूज बनता है, एक कॉमन तरीका बनता है कि कैसे आप इस चीज को बेटर कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन। नाउ एक्सटेम्पोर। इन एक्सटेम्पोर आपको टॉपिक ऑन द स्पॉट दिया जाता है, जस्ट 1 या मैक्सिमम 2 मिनट पहले। इस चीज से हम सभी लोग बचपन में से ही जानते हैं, स्कूल में होता था, उसके बाद कॉलेज लेवल में एक पर्ची है, एक बाउल के अंदर एक पर्ची है, डिफरेंट पर्चियों में से आपको जाना है, एक पर्ची वहां से उठानी है। जो भी टॉपिक आया, आप ज्यादा से ज्यादा उस पर 1 मिनट या 2 मिनट सोच सकते हैं, कुछ की पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं, और सीधा जाकर के आपको स्पीड में विद फ्लुएंसी यू हैव टू स्पीक। एक्सटेम्पोर आप तभी लेकिन बोल सकते हैं, जैसे कि आप एक्सटेम्पोर में आ गया कि मेरा भारत, अब आपको मेरा भारत है या माय बैग है या राष्ट्रगान है, इसके ऊपर आपको नेशनल एंथम है, इसके ऊपर आपको बोलना है। आप बोल तभी पाएंगे जब आपके पास प्रीवियस नॉलेज होगी। प्रीवियस नॉलेज के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, और पढ़ना, जब हम कहते हैं कि डिबेट से किस तरीके से होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट का, तो वो आपको पहले से जो आपको पढ़ना है सभी टॉपिक्स पे, उसके थ्रू होता है। तो एक्सटेम्पोर आपको तुरंत बोलना है जाकर के। कन्वेंशनल डिबेट और पार्लियामेंट्री डिबेट में ये मैंने डिस्कस डिटेल में किया है, तो हम इसको अभी देखेंगे। इसके बाद आता है टर्न कोट डिबेट। व्हाट इज टर्न कोट डिबेट? जैसे आपको नाम से पता चला, टर्न कोट मींस जो कोट जो आपने लिया है, जो आपने स्टैंड लिया है, वो टर्न करना है। हाउ? सपोज आपको एक टॉपिक मिला है कि एट द प्लेस ऑफ दिल्ली, मुंबई शुड बी द कैपिटल ऑफ इंडिया।
अब आप गए, आपको मिला है कि मुंबई शुड बी द कैपिटल ऑफ इंडिया। आपने बोलना शुरू किया, 5 मिनट्स की डिबेट है। 5 मिनट की डिबेट में आपने बोलना शुरू किया कि मुंबई शुड बी कैपिटल ऑफ इंडिया। व्हाई? आपने आर्गुमेंट रखा बिकॉज द मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द मुंबई इज बेटर देन दिल्ली, और आपने बाकी चीजें रखी, म्यूनिसिपैलिटी और डिफरेंट चीजें। जैसे ही उसका 40% टाइम हो गया 5 मिनट का, यानी कि 2 मिनट्स, 2 मिनट्स के बाद एक बेल बजेगी। बेल बजने के बाद आपको अपना कोड चेंज करना पड़ेगा, टर्न करना पड़ेगा। नाउ अब आपको ही सेम पर्सन को उसके अगेंस्ट में बोलना है कि व्हाई मुंबई शुड नॉट बी द कैपिटल ऑफ इंडिया, बिकॉज इन द दिल्ली देयर इज इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्लियामेंट बिल्डिंग्स एंड लीगेसी, हिस्टोरिकल लीगेसी। आपको डिफरेंट चीजें अपने 2 मिनट में आपको पूरी बात रखनी है। 2 मिनट खत्म, आपके ऊपर अगेन बेल बजेगा, यानी अब आपके 4 मिनट हो गए। लास्ट 1 मिनट में अब आपको खुद ही अपने डिबेट को एडजुडिकेट करना है, जज करना है, और आपको बताना है कि व्हाई दिल्ली शुड बी द कैपिटल, व्हाई मुंबई शुड बी द कैपिटल ऑफ इंडिया एट द प्लेस ऑफ दिल्ली, और व्हाई नॉट, और आपका इस पे अब क्या स्टैंड है। ये टर्न कोड डिबेट का फुल फॉर्मेट है। अब है कन्वेंशनल डिबेट एंड पार्लियामेंट्री डिबेट, इसको हम देखते हैं। नाउ कन्वेंशनल डिबेट, कन्वेंशनल डिबेट जो आप यदि डिबेट करते हैं या जानते हैं, या डिबेट के बारे में जब आपने सुना, तो आपके माइंड में जो डिबेट की पिक्चर बनती है वो कन्वेंशनल डिबेट की है। कन्वेंशनल डिबेट में आपको कुछ दिन पहले, आपकी डिबेट है तो 2 से 3 दिन पहले आपको एक टॉपिक दिया जाता है। उस टॉपिक पे आप और आपके जो सेकंड पार्टिसिपेंट है, 2 लोग होते हैं इसमें, 2 पर्सन, 1 फॉर द मोशन, 1 अगेंस्ट द मोशन, 1 विल सपोर्ट द मोशन, 1 विल अगेंस्ट द मोशन, वो बोलेगा। तो वो 2 लोग उस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। क्योंकि आपके पास में एसेंशियल टाइम है, रिक्वायर्ड टाइम है 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन का, तो अब आप उस पे अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, आप उस पे रिसर्च कर सकते हैं, आप उस पे जाके पढ़ सकते हैं, आप डिफरेंट लोगों से जान सकते हैं, बात कर सकते हैं विद योर प्रोफेसर, विद योर टीचर। अब उससे आपको एक नॉलेज मिलती है। सो उस नॉलेज को आपको पिरोना होता है। हाउ? आपको उसको स्ट्रक्चर्ड आर्गुमेंट्स बनाना है। जो एक सिंपल आर्गुमेंट जो आपको बातें कही गई है वो आर्गुमेंट नहीं है, उसको आपको आर्गुमेंटिकली फॉर्म करना है। उस आर्गुमेंट को फॉर्म करने के बाद अब आप डिबेट में जाते हैं। डिबेट में जाने के बाद 1 पर्सन फॉर द मोशन बोलता है, 1 अगेंस्ट द मोशन बोलता है। दोनों के डिबेट के बाद आपकी, क्योंकि एक टीम है, उस टीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सामने ऑडियंस बैठी हुई है उसमें से कोई भी 1-1, 2-2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्रॉस क्वेश्चन लेकिन अलाउड नहीं है। इसमें आपको पढ़ करके बोलने की छूट नहीं होती है, लेकिन आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो कोट्स है उनका यूज कर सकते हैं कि इसने ये कहा था, ऐसा कहा था, इस चीजों का आप यूज कर सकते हैं। तो मीन्स ये डिबेट सिर्फ आपके मैटर पे जज नहीं होगी जो आपने बोला है, लेकिन आपने उसको कैसे बोला है, यानी मेथड क्या है और मैनर क्या है, आपने उसका लाइन वाइज कैसे लगाया है, प्राइमरी लॉजिक, जो लॉजिक पहले आने चाहिए थे किसी टॉपिक में, वो पहले आए हैं क्या, जो बाद में आने चाहिए थे क्या वो बाद में आए हैं, उस पूरे टॉपिक पे डिबेट जज होती है। जैसे एग्जांपल के लिए एक मान लेते हैं कि दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज गुड फॉर इंडिया और नॉट, और गुड फॉर द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो एक पर्सन इसके पक्ष में बोलेगा, जो फॉर द मोशन बोलेगा वो आकर के एक एक आर्गुमेंट देगा कि व्हाई इट इज गुड, एंड जो अगेंस्ट बोलेगा वो बोलेगा कि नहीं, नहीं होता है। बस इसके बाद जो पब्लिक के सामने वो एक क्वेश्चन पूछ लेगी, लेकिन आपने कैसे करके बोला है, आपका भाव भंगिमा क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें कन्वेंशनल डिबेट में जज होती है। नाउ कन्वेंशनल डिबेट के बाद अब हम आते हैं द रियल फॉर्म ऑफ डिबेटिंग इन द यूनिवर्सिटी सर्किट और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ नेशन, दैट्स कॉल्ड पार्लियामेंट्री डिबेट। तो पार्लियामेंट्री डिबेट जो आप लोगों में से जो लोग करते हैं वो जानते होंगे, जो लोग नहीं करते हैं वो नहीं जानते होंगे। इसको रियल फॉर्म ऑफ डिबेटिंग कहते हैं। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो डिबेटिंग सर्किट है उसमें एक लाइन कही जाती है कि आप 100 कन्वेंशनल डिबेट जीत जाइए और आप एक पार्लियामेंट्री डिबेट जीत जाइए, इक्वल है। वाई? क्योंकि इसका यूनिक नेचर है। वो यूनिक नेचर कैसे है, हम इसको अब समझने की कोशिश करते हैं। इस डिबेट में इंडिविजुअल पार्टिसिपेट नहीं करता है, यहाँ पे टीम पार्टिसिपेट करती है। जनरली 2 पर्सन या 3 पर्सन की टीम होती है। एक एग्जांपल में मैं 2 पर्सन की टीम बता रहा हूं। यहाँ पे 2 इंडिविजुअल की टीम है, तो 1 आपको एक टॉपिक, इसमें ना पहले बताया गया है ना 2 मिनट पहले, एक टॉपिक आया है। उस टॉपिक को आपको रिलीज कर दिया गया पोडियम से। पोडियम से टॉपिक के बाद आपने एक टॉस किया है। टॉस करने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि आप फॉर द मोशन जाएंगे या आप अगेंस्ट द मोशन जाएंगे, यानी आप पक्ष लेंगे या आप विपक्ष लेंगे।
यदि आप पक्ष लेंगे तो आप हाउस को सेट करते हैं। आप हाउस को सेट करने के बाद आप बताते हैं कि हाउस किसका है। लोकसभा का हाउस है, इंडियन सोसाइटीज का हाउस है, पार्लियामेंट का हाउस है, या किसी इंडिविजुअल के मन का हाउस है ये। जबकि कन्वेंशनल डिबेट में ये होता है कि दिस हाउस बिलीव्स दैट, उसमें हाउस पहले से बिलीव कर रहा होता है, बिलीव किया होता है, हाउस सेट होता है। पार्लियामेंट्री डिबेट में हाउस सेट का जो फ्रीडम है वो जो टीम पक्ष में होती है उसके पास में ये आजादी होती है। तो जो पक्ष की टीम है वहां से 2 पर्सन है। फर्स्ट जो स्पीकर आएगा दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द हाउस, एंड द सेकंड पर्सन इज डीपीएम, मींस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द हाउस। सेम इन द अगेंस्ट टीम, leader of opposition in the house, that's called LO, and DLO, deputy leader of the house, deputy leader of the opposition। तो डिप्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द विपक्ष की साइड में ये होते हैं दोनों। अब टॉस होने के बाद जब प्रिपरेशन के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट का टाइम मिला है और टॉपिक इसमें आपके डिफरेंट टॉपिक हो सकते हैं, फ्रॉम द साइंस टू सोशल साइंस के किसी भी, ह्यूमैनिटीज, इकोनॉमिक्स से लेकर के हिस्ट्री तक का, पॉलिटिकल साइंस से लेकर के ज्योग्राफी, और इवन इमेजिनरी टॉपिक, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, ये सारे कोई भी टॉपिक आपके लिए आ सकते हैं। तो इसलिए पढ़ना इसमें जरूरी हो जाता है, पहले से आपको नॉलेज पता होती है। यदि आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हैं और आप यदि फिलॉसफी के स्टूडेंट नहीं है तो आप इंडिया के सद दर्शन नहीं जानते होंगे, लेकिन आप एक डिबेटर है और पार्लियामेंट्री डिबेटर है तो इंडिया के सद दर्शन आप जरूर जानते होंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज सिखाई जाती है डिबेटिंग सर्किट में। तो पीएम, डीपीएम, एलओ एंड डीएलओ, अब स्पीच होती है। स्पीच में सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर आएगा, प्राइम मिनिस्टर हाउस सेट करेगा और उस हाउस सेट के अंदर अपनी बातों को वो रखेगा कि ये कारण से हम इस मोशन को सपोर्ट कर रहे हैं। देन लीडर ऑफ अपोजिशन आकर के बताएगा, पहले वो बताएगा कि पीएम के आंसर्स में या पीएम के आर्गुमेंट्स में क्या क्या कमियां हैं। पीएम की जब उसने कमियां बता दी तो वो अपने पॉइंट्स बताएगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष क्यों ऐसा चाहता है, व्हाट इज द वांट ऑफ विपक्ष, व्हाट इज द नीड ऑफ द अपोजिशन। जैसा कि आपके पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में होता है, यदि वहां पर वेल स्ट्रक्चर डिबेट हो तो ऐसा ही होगा। अब होता है नहीं होता वो आप खुद जानते हैं। देन डीपीएम आते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ हाउस। वो आपको बताते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था वो क्यों सही है, कैसे सही है, और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसकी बातों को काटते हैं और बताते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन की यहाँ पे कमियां हैं। देन डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन आते हैं, बिकॉज डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन लास्ट डिबेटर है उस पूरे हाउस का, तो नए पॉइंट्स नहीं दे सकता है, बट वो पीएम एंड डीपीएम को काउंटर कर सकता है और अपने एलओ को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग चीजें कह सकते हैं। जब स्पीच ओवर हो गई है तो आपको 2 मिनट का एक प्रिपरेशन टाइम दिया जाता है, पक्ष को और विपक्ष को। प्रिपरेशन में आपको क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करना होता है, जो सामने वाली टीम्स ने स्पीच में बोला है उसको आप डिफरेंट एंगल से पूछ सकते हैं। डिबेट में फिर आप एक पहले विपक्ष यानी कि जो टीम अपोज कर रही है वो पक्ष की टीम से एक स्पीकर को बुलाती है, पीएम और डीपीएम, और उससे अगले 3 या 4 मिनट तक लगातार क्वेश्चन पूछते हैं। क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पे अलाउड होता है और आप बिल्कुल जैसा पार्लियामेंट में देखते हैं शायद उससे ज्यादा यहाँ पर बात होती है और उतना ही तीखी आवाज में ही बात होती है, लेकिन वहां से एक कंस्ट्रक्टिव निकालने की कोशिश होती है, क्या आप कुछ बोल पा रहे हैं जो कि इस हाउस में सेट बैठता है। देन सेम प्रोसेस पीएम के साथ, डीपीएम के साथ, एलओ के साथ एंड डीएलओ के साथ चलता है। ये पूरा क्वेश्चन आंसर है। जब ये क्वेश्चन आंसर ओवर हो जाता है तो अब एक रिप्लाई स्पीच दी जाती है, जो पहले विपक्ष की टीम देती है, अपोजिशन टीम देती है, एंड देन फॉर सपोर्टिंग टीम देती है। उस अपोजिशन टीम और सपोर्टिंग टीम के बाद अब जो एडजुडिकेटर सामने बैठा है, एज बैठा है, उस पूरे डिबेट को एनालाइज करता है और यहां पर जैसे कन्वेंशनल डिबेट में भाव भंगिमा, आपकी कॉन्टेक्स्ट क्या था, आपका फिजिकल अपीयरेंस क्या था, ये सब मैटर कर रहा था। इस डिबेट में सिर्फ और सिर्फ आपके आर्गुमेंट्स, जो आपने लॉजिक्स दिए हैं, वो मैटर करते हैं। आपके लॉजिक्स के बेस पे आपके पूरे डिबेट को नापा, परखा और तोला जाता है। देन आपकी डिबेट्स को एज बताते हैं कि आपकी डिबेट में ये कमियां थी या यहां से आप बेटर कर सकते थे और ये टीम ने ये मैच जीता है। ध्यान रखिए मैंने आपको एक मैच का प्रोसेस बताया है। अब देखिए इस पूरी डिबेट में जो है ये फर्स्ट राउंड जब शुरू होता है, जब एक पार्लियामेंट्री डिबेट आप करने के लिए जाते हैं तो शुरू में लगभग 36 से 40 टीम होती है। एग्जाम्पल मान लेते हैं 40 टीम्स है। 40 टीम्स रैंकिंग वाइज उनको लगा दिया जाता है, जिस भी ऑर्डर में वो लोग आए थे घर से, जिस भी ऑर्डर में उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। फर्स्ट टीम का मैच 40 टीम से, सेकंड का मैच 39 से, थर्ड का मैच 37 से। अब जितना पहले या जितना बाद में उस हिसाब से फर्स्ट मैच।
अब 20 टीम्स होंगी जिन्होंने फर्स्ट मैच जीता होगा, देन 10 टीम्स होंगी जिन्होंने सेकंड, अब जो टीम जीती है उनका मैच होगा, फर्स्ट का मैच 20 से, सेकंड का मैच 19 से, और सेम 21 का मैच 40 से, 22 का मैच 39 से। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें हर टीम को प्रीलिम्स राउंड में 5-5 मैच खेलने हैं। जब आपने 5-5 मैच खेल लिए हैं, तो अराउंड 36 और 40 टीम्स हैं, ईच टीम को 5-5 मैच खेलने हैं। 5 के बाद जितनी टोटल टीम्स है उनका नंबर ऑफ विन्स काउंट किया जाएगा। जिस 8 टीम्स के हाईएस्ट विन्स होंगे, वो टीम नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अब सपोज कीजिए मेरी टीम और सामने वाली टीम के विन्स इक्वल है, तो फिर जैसे आप वर्ल्ड कप में, क्रिकेट के वर्ल्ड कप में या फुटबॉल के वर्ल्ड कप में देखते हैं कि नेट रन रेट देखा जाता है, तो मार्जिन ऑफ विक्ट्री यहां पर होती है। जब एडजुडिकेटर ये बताता है कि ये टीम जीती है, तो ये भी बताता है कि मार्जिन ऑफ विक्ट्री कितनी रही, मतलब उसने कितने अच्छे से ये मैच जीता है सामने वाली टीम से। तो मार्जिन ऑफ विक्ट्री उसके सभी मैचों की काउंट की जाती है। नंबर ऑफ विन्स देन मार्जिन ऑफ विक्ट्री। इसके बेस पे 8 टीम्स अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करती है। दैट राउंड इज क्वार्टर फाइनल। नाउ क्वार्टर फाइनल में जाते ही आपकी टीम की रैंकिंग हो जाती है, जैसा आपने प्रीलिमिनरी राउंड में परफॉर्मेंस किया था उस बेस पे टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4, 5, 6, 7, 8। अब 8 टीम में से टीम 1 का मैच टीम 8 से होगा, मैच 2 होगा टीम 2 वर्सेस 7, मैच 3 टीम 3 वर्सेस 6 एंड 4 वर्सेस 5। नेक्स्ट सेमीफाइनल में जाने के लिए इन टीमों का जो आपस में मैच होगा, वहां से हर मैच में एक ना एक टीम जीत रही होगी। जो भी टीम जीतेगी विनर ऑफ मैच 1 वर्सेस विनर ऑफ मैच 4, इसका सेमीफाइनल 1 होगा, और विनर ऑफ मैच 2 वर्सेस विनर ऑफ मैच 3, उसका सेमीफाइनल 2 होगा। इन दोनों के बीच में जो मैचेस होंगे, वहां पर भी सेम टॉपिक और सेम प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, जो मैंने आपको मैचेस का बताया था, जो मैंने आपको ऑर्डर वाइज बताया था। इसके बाद वो टीम्स, जो टीम भी सेमीफाइनल में से जीती है, वो टीम फाइनल में जाती है। फाइनल में जाने के बाद आपको एक सिंगल मोशन दिया जाता है, और यहाँ पर आपको टॉस पहले होता है मोशन दिखाने से पहले, और अब आपको डिसाइड करना होता है कि आप पक्ष में रहेंगे या अपोज करेंगे, मीन्स आप फेवर करेंगे या अपोज करेंगे। आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद अब आपको मोशन या टॉपिक दिखाए जाएंगे। आपको प्रेप के लिए 10 या 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और सेम जो पूरा प्रोसेस हुआ था वो फाइनल में होगा। फाइनल के मोशन आमतौर पे फिलोसफिकल या फिर रिलेशन, जो हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशन है, उनसे मोशन होते हैं। नेक्स्ट, इससे पहले इस वाले में अब फाइनल है, फाइनल में जो टीम जीतेगी वो टीम फाइनल जीतेगी, और फाइनल जीतने के बाद उसे एक बड़ी सी चमचमाती हुई ट्रॉफी मिलेगी। उस ट्रॉफी को जो है रनिंग ट्रॉफी कहते हैं। आपकी कॉलेजेस में डिफरेंट रनिंग ट्रॉफीज आती हैं, आप देखते होंगे, वो साल भर के लिए उस कॉलेज में रहती है। दिस इज प्रेस्टिजियस इवेंट फॉर अ डिबेटिंग सोसाइटी ऑफ अ कॉलेज। नाउ अब हम कह रहे हैं कि डिबेट तो होनी चाहिए, डिबेट इतनी मुश्किल भी है और डिबेट इतना ज्ञानवर्धक भी है, डिबेट इतना रोमांचक भी है, बट ऑब्जेक्टिव क्या है डिबेट के? आप डिबेट करने से आपको हासिल क्या होगा? व्हाट विल गेन? फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको होगा वो है क्रिटिकल थिंकिंग कैपेसिटी ऑफ अ डिबेटर। आप एक स्टूडेंट है, आपको अपना क्रिटिकल थिंकिंग, आपको थिंकिंग करना है डिफरेंट डायमेंशंस पे। वो जो क्रिटिकल थिंकिंग है, वो क्रिटिकल थिंकिंग आपको डिबेट करने से आती है जब आप माइन्यूट चीजों पे सोचते हैं, जब आप सामने वाले की गलतियों को पकड़ते हैं, जब आप देखते हैं कि सामने वाले ने क्या बोला, कैसा बोला, और मुझे इसके विपक्ष में क्या बोलना है। और जब आपको 10 मिनट में ही सेम टॉपिक पे आपको दुनिया भर की चीजें सोचनी है और आपको जाकर के रखना है। सेकंड, प्रमोट्स रैशनैलिटी इन थिंकिंग एंड ओरिएंटेशन। रैशनैलिटी इन थिंकिंग मीन्स यदि आप राइटिस्ट हैं, तो डिबेट तो लेफ्टिस्ट में रहते हुए भी आपको करना पड़ सकता है, और यदि आप लेफ्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, तो आपके डिबेट में ऐसा आ सकता है जहां पर आपको राइटिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करनी हो उन व्यूज पे, तो वहां पर तो आपको डिबेट करनी पड़ेगी। तो रैशनैलिटी क्या है? और सेम चीज पे, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, रैशनैलिटी थिंकिंग। आपको पता है कि जो महिलाओं के लिए था, पीरियड्स जो थे, जो बच्चे का जो पीरियड होता है, उसको छुट्टियां 12 वीक से बढ़ा के 26 वीक कर दी गई थी चाइल्ड केयर के लिए, प्रेगनेंसी लीव जिसे आप कहते हैं। प्रेगनेंसी लीव बढ़ा करके 26 वीक कर दी गई। ये बहुत अच्छी बात है, महिलाओं का आगे बढ़ेंगे, सब कुछ होगा, वुमेन एम्पावरमेंट इससे बढ़ेगा। लेकिन अब इसका विपक्ष क्या है? विपक्ष ये है कि जब ये आया था 2017-18 में, तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों ने उस वक्त
क्या किया था कि महिलाओं को काम पे रखने से मना कर दिया था। जो यंग महिलाएं आती थी जिनका शादी होने वाला है, उनको महिलाओं को काम पे रखने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इनकी शादी होगी, शादी होंगी तो बच्चे के टाइम पे ये प्रेगनेंसी लीव लेंगे और उस वक्त हमें 6 मंथ की सैलरी इनको घर बिठा करके देनी पड़ेगी। तो ये इसके काउंटर आर्गुमेंट्स है और ये हो रहा था। तो रैशनैलिटी थिंकिंग और ओरिएंटेशन आप इससे निकाल के लाते हैं। नाउ डिस्कशन विद लाइक माइंडेड इंटेलेक्चुअल पीपल्स इन द कम्युनिटी। यदि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप पॉलिटी पढ़ सकते हैं। यदि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं आप हिस्ट्री पढ़ेंगे। लेकिन आप सब कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन यदि आप डिबेटर हैं तो आप डिबेटर्स के ग्रुप में रह रहे हैं और जब डिबेट के ग्रुप में आप रह रहे हैं तो आप इंटेलेक्चुअल्स लोगों के साथ रह रहे हैं। और यदि आप इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ रह रहे हैं तो आप डिफरेंट चीजों को डिस्कस कर रहे हैं जो सोसाइटी में आपके हो रहा है और या जो सोसाइटी में हो रहा था या जो होने वाला है। तो इंटेलेक्चुअल पीपल के साथ आप डेवलपमेंट करते हैं। पार्लियामेंट्री डिबेट्स में जो अधिकतर जो एजुकेटर्स आते हैं वो लॉ से हैं। लॉ से हैं, कुछ उसमें से जज होते हैं जो कि पटना हाई कोर्ट्स में जज हैं, मैं 2-3 को जानता हूँ। एडवोकेट्स हैं मेनली, उसमें जर्नलिस्ट हैं, उसमें प्रोफेसर्स हैं जो डिबेटिंग सर्किट्स में एक्टिव है। उनके साथ आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं और आज की डेट में Vikas, you are having 5 minutes more. Vikas, you are having because we have crossed our time limit. So Sure, sir, you are sure. having 5 minutes. श्योर सर। नाउ द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये आपकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर रहा है। वाइडर नॉलेज बेस ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ इंटरडिसिप्लिन। आप एक डिसिप्लिन के स्टूडेंट होते हुए आप डिफरेंट टॉपिक्स आप पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि आपको डिबेट करनी है, तो आपके नॉलेज बेस को वाइड करता है। नाउ डेवलप मेंटल एंड इमोशनल मैच्योरिटी है। पब्लिक स्पीकिंग की, पब्लिक के बीच में कैसे बोलना है आपको 100% या 500% के बीच में, आपकी पब्लिक स्पीकिंग को डेवलप कर रहा है। कॉन्फिडेंस आपका, क्योंकि यदि आपको बोलना आता है, यू हैव द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। कॉन्टेक्स्ट एंड सर्कल आपका एनरिच होता है। नाउ मैं एक लास्ट पॉइंट पे आऊंगा, स्ट्रॉन्ग योर करंट अफेयर। स्ट्रॉन्ग योर करंट अफेयर में आप जानते हैं कि जो भी बच्चे सिविल सर्विस या इन सब चीजों की प्रिपरेशन करते हैं, करंट अफेयर उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है और जो जनरली नॉन पर्सन भी है उनके लिए भी। तो वो आप, क्योंकि डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आपको आदत होती है, तो वो आप पढ़ते हैं। नाउ यहाँ पर एक पॉइंट है हाई अर्निंग का। डिबेटिंग सर्किट में जो ज्यादातर लोग हैं उनके लिए हाई अर्निंग एक स्टूडेंट है आप। आपको अपने सेल्फ डिपेंडेंसी जो है आपको खुद लेके आनी होती है, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। उसके लिए एक अर्निंग चाहिए होती है। अब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा जाकर के आप जॉब नहीं कर सकते, लेकिन इस करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू आप अर्न कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में फ्रॉम अगस्त से दिसंबर तक कन्वेंशनल डिबेट का पूरा माहौल होता है, पूरा टाइम पीरियड चल रहा होता है और अच्छा अच्छा प्राइस है इस पे। एक दिन में 4-4 जगह 5-5 जगह डिबेट हो रही है। मैं ऐसे लोगों को देखा है, जानता हूं, जिन्होंने 4-4 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए सिर्फ डिबेटिंग से अपने ग्रेजुएशन टाइम पे कमाए हैं। और पार्लियामेंट्री डिबेट्स तो आपको ह्यूज प्राइस मनी देता है 20,000 के अराउंड एक एक डिबेट जीतने पे। नाउ हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ डिबेटिंग। रीड मोर ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स आपको पढ़ना ही है। जो भी आपको मोशंस मिला है, आपको बोलने से पहले हमेशा सोचना है, उसको आप बार बार देखिए, पढ़िए और उन सबको आप अपने करंट डायमेंशन के साथ लिंक कीजिए। सिटिजन का यूज कीजिए अकॉर्डिंग टू एजुकेटर। यदि सामने यदि लेडीज एज बैठी हुई हैं तो आप उसके कुछ भावनात्मक पहलू की, माँ और बच्चे का प्यार, ये आपके सिटिजन से आप उनको यूज कर सकते हैं। और आर्गुमेंट्स तो आपके लॉजिक में दम होना चाहिए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी डिबेटिंग सर्किट। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी हैं उनमें डिबेटिंग सोसाइटीज हैं। हिंदी की भी है, इंग्लिश की भी है। बहुत सारे में हिंदी की डिबेटिंग सोसाइटी नहीं है। जैसे कि मुझे याद है कि जाकिर हुसैन में जब मैं गया था तो वहां पर कुछ डिबेटर्स थे, जो विकास दिव्य कीर्ति सर को आप जानते हैं, विजेंद्र सिंह चौहान सर को आप जानते हैं, इंद्र सर को जानते हैं। तो जब ये लोग अपने टाइम पे डिबेटर्स थे तो ये पे डिबेट करते थे, बट डिबेटिंग सोसाइटी नहीं थी। तो 2015 में जब मेरा एडमिशन हुआ तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया टीचर्स से मिल करके, और इन लोगों ने काफी हेल्प करी और हम लोगों ने क्या किया, डिबेटिंग सोसाइटी वहां पे बनाई हिंदी की। हिंदी और इंग्लिश की सेम अब डिबेटिंग सोसाइटी है और ये सेम डिबेटिंग सोसाइटी पार्लियामेंट्री डिबेट्स और बाकी सब कुछ, हमने एक पार्लियामेंट्री डिबेट यहाँ पे करवाई 2018 में और तब से लगातार चल रहा है। अभी ये 6th पार्लियामेंट्री डिबेट है इनका, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज का। इस तरीके की डिबेटिंग सोसाइटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर कॉलेजेस में है, जहां पर या तो आप ईसीए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू जब आपका डीयू में एडमिशन होता है तब आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, या फिर आपको ऑडिशन देना पड़ता है जो डिफरेंट सोसाइटीज के लिए आप देते हैं। आपको कॉलेज में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यदि आप अच्छा करते हैं तो आप अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, एंड आफ्टर यदि आप यूनिवर्सिटी लेवल अच्छा करते हैं तो आप स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट लेवल जाते हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं आप नेशनल लेवल पे। जैसे सरदार बलवंत सिंह डिबेट होती है बलावला देहरादून, इसके बाद
एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की डिबेट है जो 1920 से चली हुई आ रही है, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी जीत करके आए थे। ये डिबेट का आपको रहना, खाना, पीना और आने जाने का पूरा खर्चा आपको आपका कॉलेज प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ट्रॉफी जीतने का चांस होता है और चमचमाती हुई ट्रॉफी, साइनिंग ट्रॉफी यू ब्रिंग टू योर कॉलेज। So that are the proud moment for a person. You have chance to participate in international level debates. So कुछ टाइम पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान से टीम्स भी हमारे यहाँ पे आई है डिबेटिंग सर्किट में, तो वी नो कि हम इस तरीके से डिबेट्स को इंटरनेशनल लेवल पे लेकर के जा रहे हैं। एंड द इंग्लिश पार्लियामेंट्री डिबेट इन द लंदन जो हर साल होती है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सब मेजर यदि डीयू की पार्लियामेंट्री डिबेट्स की बात करें तो प्रेमचंद मेमोरियल डिबेट है हिंदू कॉलेज का, जो इंग्लिश की डिबेट है। हिंदी की डिबेट है नेताजी सुभाष प्रधान मेमोरियल डिबेट जो केएमसी का है, 31st एडिशन 31 ईयर से चली हुई आ रही है। शिवाजी कॉलेज हिंदी पार्लियामेंट्री डिबेट एंड जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज बोथ, मोतीलाल नेहरू कॉलेज। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, लास्ट 3 ईयर से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल अवार्ड दिया जाता है, जो सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे को नहीं मिलता है, जरूरी नहीं है उसे मिले। जो यूनिवर्सिटी के लिए 3 साल में सबसे ज्यादा ऑलराउंड परफॉर्मेंस जिसने किया है, उसको वो अवार्ड जाता है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल अवार्ड है ये, हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ एक स्टूडेंट को देती है। लास्ट 3 साल से ये जो अवार्ड है ये डिबेटर्स को मिल रहा है, जो डिबेटर्स रहे अपने टाइम पे, अपने 3 सालों में उनको मिला है। तो आप समझते हैं डिबेटिंग की खासियत को। थैंक यू। दिस प्रेजेंटेशन इज फ्रॉम मी। Thank you so much, Mr. Vikas. It was indeed a great talk. Now it's time for the question answer round. So the first question is asked by Ms. Shubhi Singh. The question is, argument may win the situation, but lose the person. But patience may lose the situation, but win the person. Any observations? Yes, with the arguments, you can win the situation, but you will lose the person, means your friend, your relatives. But in that situation, it is good to lose that debate, lose that argument, because your relation is more important, your relation point is more important. That friend will never come again, and that relation will never come again. The relation you build after a certain period of time, after over a period of time, you cannot make it again. So at that point of time, in the initial phase of life, so in the life you have to debate, answer your friend according to your debating skills. That's how you can convince your friend according to your answer, but they will not anger on you. वो आपसे गुस्सा भी नहीं होंगे और आपकी बातों को भी समझ जाएंगे। आपको अपनी बात को कहने का कला होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने रिश्ते को भी बचा लेंगे, आप उस सिचुएशन से भी बचा लेंगे और आप उस पर्सन के भी आप अपनी लाइफ में रखेंगे हमेशा के लिए। Okay, next question is from Mr. Mohit. Sometimes debates on news channels bring hate and misunderstanding among people on certain topic like religion, caste, color, nationalism, or language. How news channel can avoid this and people broaden their thinking and conception? Okay. So in this debate, जब भी हम रिलीजन की बात करते हैं, when we talk about the religion, this is a sentiment topic, जिस पे आप अपना हर्ट, जिससे सभी लोग अपना रिलेट कर सकते हैं. In the news center debates, the person who is coming for the debate, religious person, is not well educated, but you as a person is well educated, and through your education you know कि at till what level education is important, religion is important. After a certain level of time, your constitution is more important than your religion. तो उस केस में आपको ये समझना होता है कि आप किस तरीके से उस जगह पर बैठे जहां पर रिलीजन पे जब डिबेट हो तो आप सिर्फ वहां पे एक बेहतर डिबेट आप दे सके, इसकी बजाय कि आप उनके एंगर को और आप उसकी गलत चीजों को आप सुने. तो जो वहां पे डिबेट कर रहे हैं, और एक न्यूज एंकर यदि अपना उसमें पर्सनल ओपिनियन जो उसमें लगाता है, न्यूज का काम है न्यूज देना, पर्सनल जब आप उसमें अपना देते हैं न्यूज एंकर होने के नाते, वो आपको नहीं करना चाहिए. जैसे जब पार्लियामेंट्री डिबेट्स होती हैं, वहां पे एडजुडिकेटर अपना दिमाग नहीं लगाता है, वो कहता है कि मैं अंधा बहरा हूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जो तुम कहोगे उस बेस पे मैं जजमेंट दूंगा. सेम चीज न्यूज एंकर भी फॉलो कर सकते हैं बिना किसी का पक्ष लिए हुए. Okay, next question is from Mr. Amul. Do you think the debate has given any solution for the bigger problems? Yes, just like in debate we saw that the problem of uniform civil code.
यूनिफॉर्म सिविल कोड में यदि आप डिबेट नहीं करते तो आइदर आप इस साइड होते या आप उस साइड होते। लेकिन जिस कंक्लूजन पे आप बेटर कंक्लूजन पे आप पहुंच पा रहे हैं उसमें जो चीज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो है डिबेट। व्हेन यू डिबेट यू आर इंटलेक्ट विद योर लाइक माइंडेड पीपल, और आप उस ग्रुप में जब डिबेट करते हैं उन सबको वो चीजें समझ में आ रही है तो आप वहां से एक बेटर कंक्लूजन निकाल पाते हैं जो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। अदरवाइज किसी के लिए विन होगा, किसी के लिए लूज सिचुएशन होगा। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा किसान बिल, फार्म लॉज, यदि फार्म लॉज पे आप बैठ करके डिबेट कर लेते, आप बैठ करके चर्चा कर लेते तो आप एक बीच का रास्ता अपना सकते थे। आपने वो नहीं किया। एक पक्ष हमेशा विरोध करता रहा, एक पक्ष हमेशा अपनी बात पे अड़ा रहा। फाइनली एक पक्ष को झुकना पड़ा और एक पक्ष ने अपनी बात मनवा ली। लेकिन यदि आप बीच का रास्ता अपनाते, आप डिबेट करते, बैठ करके डिस्कशंस करते, जहां पर आप सामने वालों को भी मौका देते, खुद की बातों को भी रखते, तो आप एक बेटर तरीके से आप पहुंच सकते थे। Thank you so much. Now, one last question from my side. Your experience throughout this journey of GSTS. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज इन मेट्रो। जब मैंने जीएसटीएस के बारे में देखा था तो मैंने तुरंत बिना देखे मैंने बोला ग्रेजुएट स्कॉलर टॉक है, अप्लाई। मैंने अप्लाई किया। देन मनीष सर से मैं एक दिन ऐसे यूनिवर्सिटी में मिला और थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि दिस इज इनिशिएटिव बाय द मनीष सर। तो अंजन सर फ्रॉम जाकिर हुसैन कॉलेज सेड दैट कि मनीष सर ने ऐसा ऐसा किया है। सर वहां से तो मुझे भी आया है इनविटेशन। तो मैं उस चीज के लिए ईगर था कि जब मुझे बोला गया कि 20 मार्च में, इतना वेट कौन करेगा, 20 मार्च को मेरा टर्न आएगा। फिर वो अर्ली होकर के 5 मार्च हो गया। एंड द पर्सन निकिता एंड सुबह जो हमेशा साथ में रही, उन्होंने एक एक चीज सुबह ने एक एक, सर आपको कोई दिक्कत हो आप बताइएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो आप बताइएगा। और एक सेकंड भी, मतलब मैं कई बार कॉल नहीं भी उठा पाया, जब भी मैंने कॉल किया उन्होंने बहुत प्यार से आंसर किया। और ये लोग तो वो थे जो बात कर रहे थे, तो मुझे पता है जिनके नाम, जैसे शिवा तिवारी, आज मैंने इन्हें सुना। और भी बहुत सारी सोसाइटी के लोग होंगे, क्योंकि मैंने ये सोसाइटी चलाई है तो मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगती है। और इसका हर एक मेंबर जो पूरे इसमें अपनी जान डालता है कि किस तरीके से इवेंट को एक बेटर बनाना है, तो हर एक मेंबर इसका महत्वपूर्ण है। जो कि सबका काम बात करना नहीं हो सकता सामने वाले से, तो मुझे सबके नाम नहीं पता हो सकते, लेकिन हर इंडिविजुअल जो काम कर रहा है, चाहे पर्दे के पीछे से या आगे से, वो इसके लिए बधाई का पात्र है।